السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبر نامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ حیدرآباد اور اضلاع میں اچانک بدلتے موسم کی وجہ سے وائرل بیماریوں کا خدشہ۔ پبلک ہیلتھ ڈائریکٹر نے ملیریا، ڈینگو اور چکن گونیا سے بچنے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور مچھروں کی افزائش کو روکنے پر دیا زور۔ چلچلاتی دھوپ میں ٹریفک سگنلز پر موٹر سائیکل سواروں کو دشواریوں کا سامنا۔ GHMC نے لبرٹی چوراہے پر گرین میش لگاتے ہوئے کیا سائے کا انتظام۔ آج ملک نے کیا آن جہانی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کی برسی پر یاد۔ تلنگانہ CM ریونت ریڈی نے دیگر کانگریس قائدین کے ہمراہ پیش کیا خراج عقیدت۔ CM ریونت ریڈی نے تلنگانہ اسٹیٹ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن کا لیا جائزہ۔ انتخابی ضابطہ ختم ہونے سے قبل صنعتی ترقی کے لیے نئی پالیسیاں تیار کرنے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں پر بھروسہ نہ کریں کسان۔ ڈپٹی CM بھٹی وکرمارکا کی پریس کانفرنس، کہا 500 روپے کا بونس کی شروعات باریک دھان سے کی جا رہی ہے۔ تمام اقسام پر 500 بونس دینے کا وعدہ کر کے صرف باریک چاول پر بونس، کانگریس پارٹی کی دھوکہ دہی کی انتہا۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے ریاستی حکومت پر کی تنقید۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ جاری موسم گرما کے عروج کے دوران ہلکی سے درمیانی بارش یا پھر گرج چمک کے ساتھ بارشیں، جیسا کہ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے لیے پیشن گوئی کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عوام کو گرمی سے تو راحت مل جائے، لیکن اچانک بدلتے درجہ حرارت اور ہیومیڈیٹی کی وجہ سے مختلف وائرل انفیکشنز کے ساتھ ساتھ مچھر، خوراک اور پانی سے پیدا ہونے والے بیماریوں کے بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پبلک ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رویندر نائک نے بارش کے دوران صحت مند رہنے اور ملیریا، ڈینگو اور چکن گونیا سے بچنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر کی لسٹ جاری کرتے ہوئے مچھروں کی افزائش کو روکنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے گھروں کے ارد گرد پانی کے ٹھہرنے سے نجات کے لیے ہر جمعے کو ڈرائی ڈے کے طور پر منانے اور گھروں میں رکھے کولرز، پھلوں کے پودوں کے گملے، ڈبے، ٹائر، بالٹیوں اور نالیوں کو صاف کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ مچھروں کی افزائش کے امکانات کو ختم کرنے میں مدد مل سکے۔ اس کے علاوہ پانی سے پیدا ہونے والے انفیکشنز جیسے کہ شدید گیسٹرو، یرخان اور ٹائیفائڈ سے بچنے کے لیے گھر میں فلٹر کیا ہوا یا پھر ابلا ہوا پانی پینے اور باہر جاتے وقت بھی یہی پانی ساتھ لے جانے اور پینے، بار بار ہاتھ دھونے، خاص طور پر کھانے سے پہلے اور بعد میں، اور واش روم جانے کے بعد بھی ہاتھ اچھے سے دھونے پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ باہر کھانے سے گریز کرنے اور گھر کا پکا ہوا کھانے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہوا سے پھیلنے والی بیماریاں جیسے کہ وائرل بخار، کنجکٹیوائٹس اور انفلوئنزا سے بچاؤ کے لیے دوسروں سے ہاتھ ملانے اور جو بیمار ہیں ان کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھانے، پانی پینے اور کپڑے شیئر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ موسم گرما اپنے عروج پر ہے اور چلچلاتی دھوپ خاص کر دوپہر کے وقت میں ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ ایسے میں شہر حیدرآباد کے اہم ٹریفک سگنلز پر لال بتی کے دوران بہت سے بائک سوار رکے بغیر جا رہے ہیں یا پھر سائے کی تلاش کرتے ہوئے سائے میں رکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موٹر سائیکل سواروں کو دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے حیدرآباد ٹریفک پولیس کے اشتراک سے حمایت نگر سے لبرٹی جانے والی سڑک اور حسین ساگر سے حمایت نگر و بشیر باغ جانے والی سڑک پر واقع ٹریفک سگنل کے پاس گرین میش لگاتے ہوئے سائے کا انتظام کیا ہے۔ واضح ہو کہ حیدرآباد میں موسم گرما عروج پر ہے، جس سے شہری سڑکوں پر نکلنے کے بجائے گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ خاص طور پر دوپہر کے وقت دھوپ کی شدت موٹر سائیکل سواروں کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ ایسے میں GHMC کا یہ اقدام موٹر سائیکل سواروں کو سگنلز پر آرام دہ رکھنے میں مدد کر رہا ہے اور ٹریفک سگنل
तोड़े बगैर राहत के साथ वो लोग खड़े रह सकते हैं। शहर के दीगर बड़े जंक्शनों पर इसी तरह के शेड कैनोपीज नस्ब किए जाने की तवक्को, ख़ास तौर पर जहां ट्रैफिक सिग्नल्स पर तवील वक्फे होते हैं। बता दें कि इससे पहले मुल्क के दीगर बड़े शहरों में भी इसी तरह ग्रीन मैश लगाकर ट्रैफिक सिग्नल्स पर साए का इंतज़ाम किया जा चुका है। गौरतलब है कि शहरों में दरख्तों की कमी या फिर रोड वाइडनिंग और दीगर वजूहात की बिना पर दरख्तों की कटाई की वजह से ऐसे आर्जी इक़दामात का सहारा लेना पड़ रहा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर कांग्रेस कायदीन के हमरा आज मंगल 21 मई को साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने शहर के सोमाजीगुड़ा में वाक़े आनजहानी वज़ीर आज़म के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। राजीव गांधी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कांग्रेस कायदीन ने राजीव गांधी की कौम के लिए खिदमात को याद किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इंतखाबी ज़ाब्ता ख़त्म होने से क़ब्ल सनती तरक्की के लिए नई पॉलिसियाँ तैयार करें। चीफ मिनिस्टर ने आज वज़ीर श्रीधर बाबू के हमरा तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने गुज़िश्ता जायज़े में किए गए फ़ैसलों और कामों की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया। अहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि मुख्तलिफ शोबों के लिए 6 नई पॉलिसियाँ तैयार की जा रही हैं। बताया गया है कि MSME, एक्सपोर्ट, लाइफ साइंसेस, मेडिकल, टूरिज़म, ग्रीन एनर्जी और EV पॉलिसियों में तरमीम की जा रही है। वज़ीर आला ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो टेक्सटाइल के शोबे में पावरलूम और हैंडलूम वर्कर्स के फ़ायदे के लिए एक नई पॉलिसी तैयार करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नई पॉलिसियाँ होनी चाहिए ताकि तेलंगाना सनती तरक्की में दुनिया के ममालिक से मुकाबला कर सके। तेलंगाना के डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि अनाज की ख़रीदारी मराकज़ में कोई ताख़ीर ना हो। मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अनाज जमा होते ही किसानों के खातों में रकम जमा कर दी जाएगी। अहदेदारों को मशवरा दिया गया है कि वो महकमा मौसमियात की हिदायत किसानों को वक्तन फ़वक्तन देते रहें। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को नुकसान से बचाने के लिए भीगे हुए और ख़राब अनाज को भी ख़रीदेगी। उन्होंने किसानों को झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों पर यकीन ना करने का मशवरा दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि 500 रुपये का बोनस की शुरुआत बारीक धान से की जा रही है और बाद में दूसरे अक़साम पर भी लागू की जाएगी। మీరు గతంలో తడిసిన ఓట్లు కొనలే, మొక్కెత్తిన ఓట్లు కొనలే. అటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు లేకుండా మేము బై ఛాన్స్ ఇన్ని చర్యలు తీసుకున్నప్పుడు కూడా అకాల వర్షం సడన్ గా ఏదైనా వచ్చి అక్కడ ఉన్న రైతులు అప్పటికప్పుడే మనం చేసుకోలేకపోతే తడిస్తే కూడా తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా MSP తో కొంటామని చెప్పాం. ఎక్కడ ఒక్క గింజ కూడా వదిలిపెట్టమని చెప్పాం. అది ఏ స్థాయి వరకు అంటే చివరికి మొక్కెత్తినటువంటి గింజలను కూడా మొలకలు వచ్చినటువంటి ధాన్యాన్ని కూడా ఒక్క గింజను కూడా వదిలిపెట్టకుండా అదే MSPతో రేట్ తగ్గించి కాదు, అదే MSPతో ఈ ప్రభుత్వం కొంటదని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. కొంటుంది కూడా. ఏ రైతు ఆందోళన చెందొద్దని మేము చాలా స్పష్టంగా రైతులకు చెప్తా ఉంటే మీరు ఆ పక్కన తడుస్తా ఉన్నాయి, రైతులు అన్యాయం అయిపోతా ఉన్నారు అని వాళ్ళని భయపెట్టి భయభ్రాంతులు గురి చేసి ఒక రకమైనటువంటి ఒక ఉద్రిక్త వాతావరణం రైతుల మనస్సుల్ని ఆందోళన చెందేటట్టుగా చేసే పరిస్థితి మంచిది కాదు. దయచేసి మీరు మీ ఆనందం కోసం రైతులను ఇబ్బంది పెట్టకండి. మేము చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాం. ఎన్ని లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు పండినా చివరి గింజ వరకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంటది, తడిసినా కొంటది, మొలకలెత్తినా కూడా అదే MSP రేట్తో కొంటది. మీరు నెలల తరబడి కొన్నటువంటి ధాన్యానికి డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. మేము కేవలం 3 రోజుల్లో రైతు అకౌంట్లోకి డబ్బులు వేస్తాం. నెలల తరబడి రైతులకు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. మేము 3 రోజుల్లో రైతులు ఆ ట్రక్ షీట్ పట్టుకొని మిల్లర్ల చుట్టూ తిరుగుతూ వేసిన కాటా వేసిన ధాన్యాన్ని మా 10 కేజీలు తీశారు, లేకపోతే అది తీశారు ఇది తీశారు అని చెప్తూ వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకుండా మిల్లర్లు బయటికి పంపిస్తూ, లేకపోతే సివిల్ సప్లైస్ వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వక రకరకాల ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు. ఇవాళ ఏ ఇబ్బంది లేదు. 3 రోజుల్లో 3 డేస్లో డబ్బులు ఇస్తాం. ఇది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధి, రైతాంగ సోదరుల కోసం, పంట పండించేటువంటి కుటుంబాలు ఆదుకోవడం కోసం చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఇది. దయచేసి తప్పుడు సమాచారం ప్రజల్లో చొప్పించి మీకేదో ప్రసార మాధ్యమాలు మీ సొంతవి ఉన్నాయి కాబట్టి
మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకొని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చూపించుకొని ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించి ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం చేయబాకండి చెప్పడం కోసమే నేను ఈరోజు మీ ద్వారా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने कहा है कि 500 रुपए का बोनस देने का ऐलान करने वाली कांग्रेस हुकूमत अब सिर्फ बारीक धान पर बोनस देने की बात कहते हुए किसानों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर तमाम अक़साम पर 500 रुपए का बोनस चाहिए तो एमएलसी इलेक्शन में बीआरएस पार्टी को कामयाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के वादों की तकमील के लिए बीआरएस अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। నిన్న కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఏమంటున్నది కేబినెట్? మేము గతంలో క్వింటాల్ వడ్లకు 500 బోనస్ ఇస్తామని చెప్పినాం. కానీ ఈరోజు సన్న వడ్లకు మాత్రమే ఇస్తామని చెప్పి సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతున్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉండే మంత్రులు పెద్దలు. మరి వాళ్ళని నిలదీయాలంటే, రైతుల తరపున కొట్లాడాలంటే, రైతు బిడ్డలైన మీ తరపున మాట్లాడాలంటే అక్కడ ఒక విద్యావంతుడికి అవకాశం ఇస్తే జరుగుతుంది తప్ప మిగతా వాళ్ళతో కాదు. అదే విధంగా ఈరోజు 1-2 కాదు, 2 లక్షల రుణమాఫీ అన్నారు, రైతు బంధు కాదు రైతు భరోసా అన్నారు. చెప్పుకుంటూ పోతే 420 హామీలు, 6 గ్యారెంటీలు. అయినా ప్రభుత్వం సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నది. 6 గ్యారెంటీల్లో 5 అయిపోయినాయి, మిగతా ఏమీ అవసరం లేదు అన్నట్టుగానే మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. మరి మీరు ప్రతిపక్షంగా ఉన్న మాకు బలమిస్తే, ప్రతిపక్షంలో ఉన్న మాకు మీరు గట్టిగా ఈ ఎన్నికల్లో ఆశీర్వాదం ఇస్తే ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసే అవకాశం మాకుంటుంది. దయచేసి ఆలోచించండి. ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో 4,70,000 మంది గ్రాడ్యుయేట్లు 3 జిల్లాల పరిధిలో 34 నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఓటు వేయబోతా ఉన్నారు. ఎవరికి ఓటేద్దాం? మొన్ననే అరిచేతిలో వైకుంఠం చూపెట్టి అన్ని వర్గాల ప్రజలను మోసం చేసిన వాళ్ళకు ఓటేద్దామా, లేదా 10 ఏళ్ల పాటు నిజాయితీగా పనిచేసినా మరి కొన్ని కారణాల వల్ల స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోయిన కేసీఆర్ గారి అభ్యర్థి ఓటేద్దామా? ఆలోచించండి. నిజాయితీగా ఈరోజు ప్రజాసేవ చేస్తూ 12 ఏళ్లు ప్రతిపక్షంలోనే పనిచేస్తూ ఒక గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన అభ్యర్థికి ఓటేద్దామా, లేదా కేవలం మీడియాను అడ్డం పెట్టుకొని, యూట్యూబ్ను అడ్డం పెట్టుకొని బ్లాక్మెయిల్ దందాలు చేసే చీటర్లకు అట్లాంటి వాళ్లకు పెద్దపీట వేద్దామా? ఆలోచించండి. साबिक वजीर व बीआरएस एमएलए हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के असेंबली इंतखाबी मंशूर में कहा गया था कि चावल की तमाम अक़साम पर 500 रुपये बोनस दिया जाएगा। ताहम अब ये कहना कि वो सिर्फ बारीक चावल को बोनस देंगे, इस पार्टी की धोखाधड़ी की इंतहा है। बीआरएस पार्टी ने हरीश राव के इस वीडियो को अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। ఇలా వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో ఎంత స్పష్టంగా చెప్పారు? తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చెల్లించబోయే మద్దతు ధర వివరాలు. ఇందులో వరి ధాన్యం 2,683, ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ వాగ్దానం. మొక్కజొన్న 2,200, కందులు 6,700, సోయాబీన్ 4,400, పత్తి 6,500, మిర్చి 15,000, పసుపు 12,000, ఎర్రజొన్నలు 3,500, చెరుకు 4,000, జొన్నలు 3,050. ఇది కాంగ్రెస్ వాగ్దానము అని వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇక్కడెక్కడ సన్న రకం వడ్లను రాయలేదు కదా, వరి ధాన్యము అన్నారు. వరి ధాన్యం అన్నప్పుడు అన్ని రకాల వరి కొనాలి కదా. ఇవాళ మాట మార్చి మరి మేనిఫెస్టోలో ఆ రోజే రాయనుంట్రీ సన్న వడ్లు మాత్రమే అని బ్రాకెట్లో పెట్టాల్సి ఉండే, సన్న వడ్లకు మాత్రమే బోనస్ ఇస్తామని చెప్పాల్సి ఉండే. ఆ రోజు మాత్రం వరి ధాన్యము అని చెప్పారు. కానీ ఇవాళ నిజంగా అది అమల్లోకి వచ్చేసరికి పండని వడ్లకు, అసలు సన్నాలు యాసంగిలో పండై 99% పండేటి దొడ్డు వడ్లే. పండని వడ్లకు బోనస్ ఇస్తామంటే ఇదేదో వెనకట్టుకో సామెత ఉంటుంది. నేను అట్లా భాష మాట్లాడలేను కానీ అట్లున్నది వీళ్ళ కథ. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने तेलंगाना में मंदिरों की अराजी से मुतालिक एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मंदिर की ज़मीनों को
जियो टैग करने का मंसूबा बना रही है। आज मंगल को बोगुलाकुंडा में महकमे मजहबियात के दफ्तर में वजीर कुंडा सुरेखा की क़यादत में एक जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि धरनी पोर्टल में ज़मीनों की तफसीलात दर्ज करने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि कब्ज़ा शुदा ज़मीनों का हिसाब लिया जाएगा और उन्हें वापस लिया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड को जदीद तरीक़ों से रजिस्टर किया जाएगा। इस इजलास में डेबिट डिपार्टमेंट की चीफ सेक्रेटरी शैलजा, कमिश्नर हसमंत राव, ईओस और दीगर कमिश्नरान ने शिरकत की। तेलंगाना हज कमेटी की निगरानी में हज हाउस नामपल्ली से 275 आज़मीन हज का एक और काफिला पीर की रात देर गए शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। इस काफिले को उलमा इकराम की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर तलबिया की गूंज में रवाना किया गया। इस मौके पर हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला और दीगर मौजूद थे। बता दें कि आज तक 30 परवाज़ों के ज़रिए 9170 आज़मीन हज की हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवानगी अमल में आ चुकी है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख लियाकत हुसैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी। अभी तक के सऊदी एयरलाइंस के जो चार्टर्ड शेड्यूल्ड फ्लाइट्स थे 38 फ्लाइट्स थे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से आज़मीन हज को रवानगी के लिए, जिसमें अल्लाह के फजल व करम से अभी तक 30 फ्लाइट्स पहुंच चुके हैं, जिसमें 9170 हाजी मदीने मुनव्वरा पहुंच गए हैं और 8 फ्लाइट्स जाना बाकी है, जिसमें तकरीबन 2200 हाजी अभी अपने पास है। ये लोगों को ये बचे हुए 8 फ्लाइट्स में 25 मई तक के ये इसका शेड्यूल है। ये शेड्यूल फ्लाइट्स के हिसाब से हम इनको भेजा दें। और जो आज़मीन हज मदीने मुनव्वरा पहुंच चुके हैं, जो शुरू 8, 9, 10 के काफिले पहुंचे, वो लोग आजकल में वहां से मक्का मुनव्वरा जाएंगे। तो इंशाअल्लाह मैं तमाम हाजियों से एक गुजारिश कर रहा हूं कि आपको तरबियती कैंपों में भी बताया गया, आप जो है खास करके सब्र का मुजाहिरा करने का वक्त है। मुल्क अलग है, रूल्स अलग है, टेम्परेचर अलग है, आप सफर में है, कुछ छोटी मोटी दुश्वारियां हो सकती, उसको बड़ा बना के वीडियोस बना के गैर जरूरी के सोशल मीडिया में मत डालिए। आप जो है अगर ऐसा कुछ भी है, आपके साथ हमारे खादिमुल हुज्जाज आपके साथ है, आपके ग्रुप में उनके फ़ोन नंबर्स आपके साथ है, उनसे रुजू हुई और यहाँ पे भी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी हज हाउस में 24/7 हमें कंट्रोल रूम कायम करे हैं, जिसका फ़ोन नंबर ग्रुप्स में अवेलेबल है। आप डायरेक्टली मुझे या मेरे कोई भी स्टाफ को व्हाट्सएप के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से आपको कुछ भी तकलीफ है हमें बताइए। घंटे 2 घंटे के अंदर इंशाल्लाह हम वहाँ पे इंडियन हज मिशन को, कौंसलर जनरल ऑफिस को बात करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश थी। जज़ाकल्लाह खैर। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने आमदनी से ज़ायद असासाजात रखने के इल्ज़ामात के तहत CCS के ACP उमा महेश्वर राव के खिलाफ आज हैदराबाद में 6 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमों ने ACP उमा महेश्वर राव के अशोकनगर में वाक़ मकान और उनके रिश्तेदारों के मकानात की तलाशी ली। ACP उमा महेश्वर राव फ़िलहाल साहित्य इंफ्रा केस की तहकीक़ात कर रहे हैं। माजी में इब्राहिम पट्टनम के ACP के तौर पर काम करने के बाद से उमा महेश्वर राव के ख़िलाफ़ कई इल्ज़ामात लगे हैं। उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है कि उन्होंने दोहरे कत्ल के मुलज़िम की जानिब से पेशकश कबूल की थी। बताया जा रहा है कि आज तलाशी के दौरान ACP के अहदेदारों ने 45 लाख रुपए नकद और 65 तोले सोना बरामद किया है। हैदराबाद के बोलारम कंटोनमेंट हॉस्पिटल के अहाते में वाक़े एक बड़े दरख्त के अचानक एक जोड़े पर गिर जाने से शौहर की मौत हो गई और बीवी शदीद ज़ख्मी हो गई। यह हादसा आज मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब यह जोड़ा अस्पताल में इलाज के लिए आया था। महलूक की शनाख्त अरविंद के तौर पर की गई है, जबकि शदीद ज़ख्मी हालत में उसकी बीवी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक अरविंद और उसकी बीवी आज सुबह इलाज के लिए कंटोनमेंट हॉस्पिटल आए थे और उसी वक्त यह हादसा पेश आया।
मुगलपुरा पुलिस इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने पीर की रात अपनी टीम के हमरा ड्यूटी के दौरान अचानक बाइक पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए रात देर गए तक खुली होटलों, पान शॉप्स पर छापे मारे, चबूतरों पर बैठ कर वक्त गुजारने वालों को पकड़ा, सिगरेट नोशी और नशे के आदी अफराद की काउंसलिंग की। आए दिन मीडिया के जरिए हमें कमसिन और मासूम बच्चों के किसी न किसी हादसात का शिकार होने की अफसोसनाक खबरें देखने या सुनने को मिलती हैं और उन बच्चों के माँ बाप किस्मत को कोसते हैं या फिर मुक़द्दर का लिखा समझकर इस गम को बर्दाश्त कर जाते हैं। ऐसे वाक़यात में सिर्फ बच्चों की गलती या कम उम्री नहीं होती बल्कि माँ बाप की गफलत व लापरवाही भी हो सकती है। नाजरीन, ये वीडियो जिसमें दो कम उम्र लड़के एक तेज़ रफ्तार ऑटो ट्रॉली के पीछे पकड़कर सफ़र कर रहे हैं, इसमें उनकी जानों को कितना ख़तरा है ये उन्हें नहीं समझ आ रहा। उनकी इस हरकत की ना ड्राइवर को खबर है ना ही उनके माँ बाप को। ये वीडियो हमारे एक साथी दोस्त सहाफ़ी करीम खान ने अपने कैमरे में क़ैद करते हुए हमें भेजी है ताकि ऐसे बच्चों के माँ बाप तक एक पैगाम पहुंचाया जा सके कि वो अपने बच्चों को महफूज रखें और उनकी हर हरकत पर नज़र रखें और उन्हें इस तरह के स्टंट करने से रोकें और जानलेवा हादसात से अपने बच्चों को बचा सकें। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद और अजला में अचानक बदलते मौसम की वजह से वायरल बीमारियों का खदशा। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर ने मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मच्छरों की अफजाइश को रोकने पर दिया जोर। चिलचिलाती धूप में ट्रैफिक सिग्नल्स पर मोटरसाइकिल सवारों को दुश्वारियों का सामना। जीएचएमसी ने लिबर्टी चौराहे पर ग्रीन मेश लगाते हुए किया साए का इंतजाम। आज मुल्क ने किया आन जहानी वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी बरसी पर याद। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने दीगर कांग्रेस कायदीन के हमरा पेश किया खिराज अकीदत। सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन का लिया जायजा। इंतखाबी ज़ाब्ता खत्म होने से क़ब्ल सनती तरक्की के लिए नई पॉलिसियां तैयार करने ओहदेदारों को दी हिदायत। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों पर भरोसा ना करें किसान। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 500 रुपए का बोनस की शुरुआत बारीक ध्यान से की जा रही है। तमाम अक़साम पर 500 बोनस देने का वादा करके सिर्फ बारीक चावल पर बोनस, कांग्रेस पार्टी की धोखाधड़ी की इंतहा। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने रियासती हुकूमत पर की तनकीद। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।